جی الحمدللہ. اچھا وہ ابھی میں سیاسی صاحب کی باتیں سن رہا تھا، وہ ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا ان کے قادیانیوں کے ریلیٹڈ. جی یہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پہ یقین رکھتے ہیں جی، کہتے ہیں فوت ہو گئے ہیں وہ. اچھا، جبکہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ ان کی موت سے پہلے اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہوگا جو ان پہ ایمان نہ لے آئے. جی. تو یہ پھر کیسے یہ استدلال لے لیتے ہیں کہ وہ فوت ہو گئے؟ کیونکہ ابھی تک تو نہ یہودی مسلمان ہوئے ہیں ان پہ ایمان لائے ہیں، اور نہ ہی کرسچن جو ہے ان کا عقیدہ واضح ہو سکا ہے کہ وہ ٹرینٹی کا عقیدہ نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی وہ نعوذ باللہ وہ جو مانتے ہیں وہ سے انہوں نے انکار تو نہیں کیا ابھی تک. اچھا پہلے تو اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ قادیانی اس مسئلے کو کیوں چھیڑتی ہیں. اس کو پہلے سمجھیں گے، نہیں تو کام صحیح، بات آپ کو صحیح سمجھ نہیں آنی. جی میں بات سمجھ. یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے اصل میں دعویٰ کرنا تھا مسیحیت کا، یعنی وہ والے عیسیٰ ابن مریم کے جن کا احادیث کے اندر ذکر ہے کہ وہ قرب قیامت میں نزول کریں گے، مرزا نے وہ والا بننا تھا. اب جب وہ والا بننا تھا تو راستے میں کئی قسم کی رکاوٹیں تھیں. سب سے بڑی اور پہلی رکاوٹ وہ یہ کہ مرزا غلام قادیانی کا نام عیسیٰ نہیں ہے اور اس کی ماں کا نام مریم نہیں ہے. تو اس رکاوٹ کو بھی اس نے دور کیا. ٹھیک ہے جی. پھر اگلی ایک رکاوٹ آئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جڑی ہوئی کچھ چیزیں، وہ چیزیں کون کون سی ہیں جی؟ وہ ہے کہ دجال کا ظہور ہوگا، حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے. تو اب دجال کہاں سے بنایا جائے؟ مرزا نے اس کو بھی تعویل کے ذریعے وہ دیوار بھی ہٹا دی، حضرت امام مہدی والی دیوار کو بھی بیچ میں کھسکا دیا. پھر یہ رکاوٹ کھڑی ہو گئی کہ عیسیٰ ابن مریم کے نزول جب ہوگا تو انہوں نے تو نازل ہونا ہے. جامع دمشق کے مشرقی مینارہ کے قریب دو فرشتوں کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے انہوں نے نازل ہونا ہے، دو زرد چادریں پہنے ہوئے. تو یہ ساری چیزیں تم کیسے ثابت کرو گے؟ اس نے کہا، اس کی بھی طویل کر دی، نزول کا معنی پیدا ہونا رکھ دیا. مینارہ اس نے کہا کہ چلو قادیان جو ہے نا یہی ہے دمشق، اور ادھر ہی ایک مینارہ بنا دو. اور دو فرشتے اس نے کہا کہ ایک مولوی عبد الکریم ہے اور ایک مولوی حکیم نور الدین ہے، یہ دو فرشتے ہیں. اچھا، دو زرد چادریں، اس سے مراد اصل میں دو میری بیماریاں ہیں. تو مطلب یہ کہ راستے میں جو بھی رکاوٹ آتی گئی وہ طویل کے ذریعے گراتا گیا. اس نے کہا کہ جس کے آنے کا اصل میں وعدہ تھا نا، وہ عیسیٰ تو اصل میں فوت ہو گئی. اب فوت کرنے کے بعد، ان کو مارنے کے بعد مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 4 قبریں بنائی ہیں، 4 قبریں. کسی ایک قبر پر بھی اس نے انحصار نہیں کیا. یا تو صرف ایک جگہ ہی رہتا نا تو ٹھیک تھا، لیکن نہیں. مرزا غلام قادیانی کبھی بلاد شام کے اندر قبر بنا رہا ہے، کبھی جناب سری نگر محلہ خان یار میں قبر بنا رہا ہے، کبھی گلگت کے اندر قبر بنا رہا ہے، کبھی جناب بلدہ قدس یروشلم کے اندر قبر بنا رہا ہے، غلیل کے اندر قبر بنا رہا ہے. تو 4-5 جگہ ملتی ہیں، کوئی ایک جگہ نہیں ہے. مختلف جگہ کے اوپر مرزا قادیانی نے قبریں کھود دی اور ان کو دفنایا. تو یہ اصل میں صرف تمام یہ عقیدہ اور نظریہ جو ہے نا مرزا قادیانی کا، یہ تعویلات کے اوپر کھڑا ہے، حقیقت کے اوپر نہیں ہے. اور یہ بھی ساتھ ذہن نشین رہنا چاہیے کہ مرزا غلام قادیانی اپنی ابتدائی زندگی کے 52 سال 52 ایئر تک وہ مسلمانوں کے عقیدے پر تھا. جو مسلمانوں کا عقیدہ تھا وہی اس نے اپنی کتابوں کے اندر بھی بیان کیا ہوا ہے.
اور وہی قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے ثابت کیا کرتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی نازل ہونا ہے، قرب قیامت میں نازل ہوں گے۔ تو وہ آج بھی وہ اس کی کتابوں کے اندر وہ نظریات موجود ہیں۔ قادیانیوں سے جب ہماری بات ہوتی ہے تو ہم وہی آیتیں پڑھ کے ثابت کرتے ہیں کہ یہ دیکھو لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے۔ کیا وہ قرآن تو نہیں بدل گئے، یا قرآن کی وہ آیت تو نہیں بدل گئی؟ آیت تو وہی ہے نا، جس کو پڑھ کے لکھ کے مرزا قادیانی نے ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود ہے اور قرب قیامت میں زندہ آسمان سے نزول کریں گے۔ تو قادیانیوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ ایک اور بھی بات یہ ہے کہ بھائی بات سیدھی سی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوں یا مردہ ہوں، اس کا تعلق مرزا غلام قادیانی کی شخصیت سے کیا ہے؟ اس کا جواب بھی آج تک کسی قادیانی نے نہیں دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوں یا مردہ ہوں۔ اور مرزا قادیانی کی سنکڑ سے جا کے سچا ثابت ہوگا کہ ایک شخص پوری زندگی زنا کاری کرتا رہا، شراب نوشی کرتا رہا، حرام کاریاں کرتا رہا اور دیگر غلط کام کرتا رہا، تو بھائی اس کا اس زنا کاری، حرام کاری، شراب نوشی، فیم کھانے اور دیگر سارے معاملات کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے یا مردہ ہونے سے کیا تعلق ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ذہن نشین رہنی چاہیے۔ جی عمران صاحب، بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ جی مفتی صاحب ماشاءاللہ آپ نے اچھا ایکسپلین کیا ہے۔ یہی وجہ ہے شاید یہ لوگ جو ہے وہ مرزا صاحب کی ذاتی زندگی کے بارے میں، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا اینڈ میں، کہ وہ ان کا جو اپنا جو عمل تھا پہلے، جو کردار ہوتا ہے بندے کا، اس کے اوپر کبھی بات نہیں کرتے۔ یہ ان کو پتہ نہیں کیوں موت آ جاتی ہے اس کے اوپر بات کرتے ہوئے۔ نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی ہو نہیں سکتا۔ کبھی کسی قادیانی نے آج تک ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کسی قادیانی نے مرزا قادیانی کی ذات اور کردار کے اوپر بات کی ہو۔ کل رات کو ہی میری ڈیبیٹ ہو رہی تھی میری دوسری آئی ڈی سے، وہ ابھی اس کے اوپر پابندی لگ گئی ہے 4 دن کی، بلکہ اسی براڈ پر پابندی لگی ہے۔ موضوع کیا تھا؟ قادیانی مربی واٹر آیا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ تم مرزا قادیانی کی ذات اور کردار کے اوپر بات کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگا کرو، میں کروں گا۔ میں نے مرزا کی زنا کاری کے اوپر بات شروع کی، یقین ماننے وہ ریکارڈنگ موجود ہے، سوائے ان لوگوں نے رپورٹنگ کرنے کے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ تقریباً 2 گھنٹے کی ڈیبیٹ ہوئی ہے، 2 گھنٹوں میں اتنے ثبوت دیے، اتنے دلائل دیے، کسی ایک چیز کا کوئی جواب نہیں تھا۔ آخر پہ براڈ میری گر گئی اور میرے اوپر 4 دن کی پابندی لگ گئی۔ یہ ہے جواب۔ مطلب آگے سے گالی نکال لیں گے، رپورٹنگ کریں گے، ماریں کوٹیں گے، جو کر سکتے بھائی یہ کر سکتے اور کچھ نہیں کر سکتے، دلیل کوئی نہیں ہے، جواب کوئی نہیں ہے۔ یہ بات۔ اچھا، ایک اور دوست بھی بیٹھے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں محمد امین صاحب ہیں، جی ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ جی جناب، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب، خیریت ہے؟ ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام، جی الحمدللہ۔ یہ حضرت میرا سوال جو ہے نا اس سے تھوڑا سا ملتا جلتا ہی ہے۔ آپ نے مرزا قادیانی کے بارے میں تو کچھ اس کے جو چیزیں وہ بتائی ہیں، تو وہ تو چلو چلا گیا دنیا سے۔ ابھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی نے بھی دنیا میں تشریف لانا ہے، تو ان کے جو ذمہ اللہ کریم نے کام لگائے ہوئے ہیں، پلیز تھوڑی سی ان کی بھی، تاکہ پتہ چلے کہ مرزا نے تو کلیم کیا ہوا کہ میں معاذ اللہ مہدی بھی ہوں، میں عیسیٰ بھی ہوں، تو جو فرق ہے نا دونوں، بلکہ 3 شخصیت ہے، اس نے تو ایک ہی شخصیت امام مہدی اور عیسیٰ کو بنایا ہوا ہے، اپنے اوپر جو چسپا کیا ہوا ہے۔ تو پلیز اس میں ہماری رہنمائی فرمائیں کہ یہ تو جو کچھ کر گیا جو ہے نا، جو انہوں نے آنا ہے ہماری بزرگ شخصیت نے، تو اللہ کریم نے جو ان کے ذمہ کام لگائے ہوئے ہیں، پلیز اس کے اوپر بھی تھوڑی روشنی ڈالیں، جزاک اللہ۔ جی ان کے ذمے کام یہ ہے کہ وہ ایک علامت کے طور پہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کے طور پہ اور ایک پیش گوئی کے طور پہ انہوں نے ظہور کرنا ہے۔ اس پیش گوئی کو پورا کرنے کے لیے چونکہ حضور نے بتایا ہے، خبر دی ہے، تو وہ اس کے لیے ظہور کرنا ہے۔
उन्होंने उनकी वो ड्यूटी या वो पूरी करेंगे वो, और आके वो नबी तो होंगे। बसा औकात कई दोस्त हमारे ये कहते हैं कि नहीं वो नबी नहीं होंगे, उम्मती बन के आएंगे। असल में यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन करने की जरूरत है। मेरा एक छोटा सा रिसाला भी है, उसके अंदर भी मैंने इस चीज की वजाहत की है इसी मौजू के ऊपर। गुजारिश ये है कि ये नहीं कहना चाहिए कि वो नबी नहीं होंगे। नबी याद रखिए, ये अकीदातुल मुस्लिमीन है और अकीदा अहले सुन्नत है कि नबी की नबूवत छिनती नहीं है। ये नहीं है कि जो कल नबी था आज नबी नहीं है, या जो आज नबी नहीं है कल वो नबी बन जाएगा, ऐसा नहीं है। तो नबी की नबूवत छिनती नहीं है, और ये नबूवत कोई कसबी चीज नहीं है कि कोई अपनी कोशिश से, मेहनत से, इबादत या रियाजत से कोई नबी बन जाए। तो याद रखिए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी ही होंगे। वो कल भी नबी थे जब उठाए गए थे, आज भी नबी हैं कि जब आसमान पर मौजूद हैं, जब नजूल करेंगे उस वक्त भी नबी होंगे। हाँ, ये है कि साबका अंबिया एक दुआ किया करते थे कि काश हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से होते। तो ये वाली जो दुआ थी ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हक में पूरी हुई और होगी कि वो हजूर अलैहिस्सलाम के उम्मती भी होंगे। यानी एक अजाज उनको नबूवत के साथ ये मिलेगा, हजूर अलैहिस्सलाम के उम्मती होने का। जब वो नजूल करेंगे तो वो शरीयत मोहम्मदिया की इत्तेबा करेंगे, वो इसराइली शरीयत के ताबे नहीं होंगे बल्कि शरीयत मोहम्मदिया के ताबे होंगे। बस ये है। तो थोड़ा सा अपने अकीदे के अंदर भी जो बिगाड़ है उसको, उसकी तसहीह करनी है। बसा औकात हमारे दोस्त ये भी कहते हैं कि अब किसी खत्म नबूवत की तारीफ करते हुए ये कहते हैं कि हजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, अब आपके बाद किसी नबी ने नहीं आना, अब कोई नबी नहीं आएगा। तो ये भी अकीदा अहले सुन्नत नहीं है। जब आप ये कहते हैं कि अब कोई नबी नहीं आएगा तो आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार कर रहे होते हैं। बल्कि सही इसकी डेफिनेशन वो भी मैंने अपनी किताब के अंदर लिखी है, अकीदा खत्म नबूवत जो किताब है उसके अंदर, कि ये कहना चाहिए कि अब कोई नबी पैदा नहीं होगा, या यूं कह लें कि अब किसी को नबूवत अता नहीं होगी। दोनों ठीक है। लेकिन ये जो आप बीच में लफ्ज बोलते हैं अपने जहालत की वजह से कि अब कोई नहीं आएगा, तो आप असल में हजरत ईसा इब्ने मरियम का इनकार कर रहे होते हैं, और किसी एक नबी का इनकार बंदे को काफिर बना देता है, वो काफिर हो जाता है जी। अच्छा जी, एक और कॉलर है, इनको भी लेते हैं। समीर साहिब है जी जनाब। जी जी भाई, अस्सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा, तो देखिए बात क्या है कि अगर हमें इनकार करना है तो करें। जी कप नहीं लगाना समीर साहब, कप नहीं लगाना, सामने आके बात करें। हाँ जी, मैंने कहा कि अगर बंदा कानून सब इनकार करना है तो करें, लेकिन कम से कम कुरान की आयत को तो उसका इनकार तो ना करें। आप अहमदी हैं इससे क्या फर्क समीर साहब, आप अहमदी हैं? आप अहमदी हैं कि नहीं? हेलो, मुसलमान ओ मुसलमान तो आप हैं। मैं जो पूछ रहा हूं ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। आप अहमदी हैं कि नहीं? क्या हो गया? नहीं बकाया दोस्त माइक म्यूट रखेंगे भाई, जी नहीं। एक मिनट ठहर जाए। बकाया दोस्त माइक म्यूट कर लें। ये इस्लाम साहब जो नीचे बैठे हैं माइक म्यूट कर लें भाई। ठीक है, समीर साहब से मैं बात करूंगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? अच्छा, आप अहमदी नहीं है? नहीं
आप मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को क्या समझते हैं, क्या स्टेटस है आपके नजदीक? देखिए मैं उसके बारे में बात करने नहीं आया हूँ। नहीं, मैं करने के लिए बैठा हूं ना, मैं तो सिर्फ उसी के ऊपर बात करने के लिए बैठा हूं। नहीं, अभी आपने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, तो कुरान की कौन सी भाई आयत है? इस्लाम साहब माइक म्यूट करेंगे कि नहीं, आप के नीचे उतार दूं आपको? जी अभी अपनी बारी का इंतजार करें ना आप, मेरे बारी का इंतजार करें, आपको हर एक मौका देते हैं, ये कोई तरीका नहीं है, बद तहजीबी सी हो जाती है। अच्छा ये देखे समीर साहब, आप मिर्जे कादियानी के मौजू पे बात कहते हैं मैं नहीं करना चाहता, तो हम तो यहाँ पे सिर्फ मिर्जे कादियानी की के ऊपर बात करने के लिए बैठे हैं, तो आप गलत जगह पे आ गए हैं मोहतरम। गलत जगह पर आप गलत बात बोल रहे हैं, आप कुरान पर झूठ बोल रहे हो कि जी जी वो ठीक है, आपने अगर तो मिर्जे कादियानी के ऊपर बात करनी है तो ठीक, नहीं तो आप फिर नीचे उतर जाए, किसी और को बात करने दें। नहीं, लेकिन मिर्जा कादियानी की इनकार करते हो, करो, मुखालिफत करना है करो, लेकिन कम से कम कुरान पर तो और चलो ठीक है, आपने मिर्जे कादियानी पे बात करनी है कि नहीं, एक दफा पूछूंगा बस। हाँ, करनी है, चलो करनी है, बस ये बात है ना, इस तरीके से बंदा खुल के खेले, ये कोई तरीका नहीं है लिबादे ओढ़ के और लफ्जों के गोरख धंधे में फंसा के, ये कोई तरीका नहीं होता। अच्छा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हो या मुर्दा हो, मेरा एक सवाल है, मिर्जा गुलाम कादियानी किस नुक्कड़ से जाके सच्चा साबित होगा? एक बंदा ज़िनाकारियां करता रहा, शराब नोशियां करता रहा, हराम कारियां करता रहा, आप क्या समझती हैं जी? मैं ये समझता हूँ कि अगर उसने कहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं, अगर कुरान उसका साथ दे रहा है तो मैं भी उसका साथ दे रहा हूँ, अगर कुरान उसका साथ दे नहीं ठीक है, बिल फर्ज कुरान उसका साथ देता है और आप उसका साथ देते हैं, मिर्जा कादियानी किस नुक्कड़ से, वो भले जना किस नुक्कड़ से, वो भले जना का किस नुक्कड़ से, वो भले जना का वो उसका साथ दे रहा है और वो कुरान का साथ दे रहा है और आप उसका साथ दे रहे हैं, साथ देने की बात नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि एक बंदा ज़िनाकारी कर रहा है, शराब नोशी कर रहा है, वो किस नुक्कड़ से जाके सच्चा होगा, मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे जी। अर्गिज नहीं किया, अर्गिज नहीं किया ऐसा। चले मैं एक फिर दलील आपको देने लगा हूँ। तो समीर उसे मिर्जे को क्यों नहीं कहते कि वो हरामी था? तेरा यार बाप भाई ये आप देखो ये जोगी गाली बाप बात नहीं, एक मिनट ठहर जा, मैं इनको नीचे उतार लूँ जरा, एक मिनट ठहर, हम नहीं भाई, बीच में कोई बोलेगा मैं उसको नीचे उतार दूंगा, ठीक है? एक बंदा बात कर रहा है ना, बस करने दें, या खुद आप कदम बढ़ाए आके खुद आके डिबेट कर लें, आपको हमारे ऊपर एतमाद ही नहीं है, एतबार ही नहीं है, कमाल करते हैं, सारे डिबेटर ही बन जाते हैं। अच्छा जी ये देखिए, ये अखबार है अल फजल 31 अगस्त 1938 का शुमारा है और सफ़ा नंबर 6 है ये, और ये लिखा हुआ है कि हजरत मसीह मऊद वली अल्लाह थे और वली अल्लाह भी कभी कभी जना कर लिया करते हैं, अगर किसने उन्होंने लिखा है कभी इसको? किसने लिखा है इसको? मुझे किसने इबारत लिखा? मुकम्मल कर लेने दे, बाद में जो मर्जी सवाल कर लीजिएगा। अरे ये तो बोलो पहले कि ये किसने लिखा है। बताता हूं ना, मुझे बात कर लेने देना, इबारत पढ़ लेने दे। हजरत मसीह मऊद वली अल्लाह थे और वली अल्लाह भी कभी कभी जना कर लिया करते हैं, अगर उन्होंने कभी कभी जना कर लिया तो इसमें हर्ज क्या हुआ? फिर लिखा है कि हमें हजरत मसीह मूतर लै शलवार पर इतराज नहीं, क्योंकि वो कभी कभी जना किया करते थे, हमें इतराज मौजूदा खलीफा पर है क्योंकि वो हर वक्त जना करता रहता है, इस एतराज से पता लगता है कि ये शख्स पैगामी तबाह है, कादियानी लोरी है। आप अभी कह रहे थे ये किसने लिखा है, ये लिखा था जनाब कादियानी लोरी ने, और इसको पढ़ के सुनाया था मिर्जे कादियानी के बेटे ने, कादियानियों के खलीफा जानी बशीरुद्दीन महमूद ने। जी अब करिए बात, इसको बताइए, एक्सप्लेन करिए। देखिए ये बातें जो है ना ये ठीक नहीं है। देखो बात क्या है कि अच्छा आप ईसा अलैहिस्सलाम को वफातशुदा मानते हो या जिंदा मानते हो? मिर्जा कादियानी जानी था, कभी कभी जना करता था, इसका बताइए मुझे, और नहीं कोई बात करनी।
نہیں وہ تو دیکھو اب پہلے ایک موضوع توال کرے نا پھر ادھر جائیں گے. میں اس موضوع سے اب آپ کو نہ ہی تو ہٹنے دوں گا اور نہ ہی ادھر ادھر جانے دوں گا. آپ جتنی مرضی کوشش کر کے دیکھ لیں. مرزا قادیانی زانی تھا, کبھی کبھی زنا کرتا تھا, اس کا اپنا مرید کہہ رہا ہے کہ مرزا قادیانی زانی ہے. میرا پیرو مرشد کبھی کبھی زنا کرتا ہے. کیونکہ وہ شاید مرزا صاحب کے مخالف تھا اس لیے. مخالف نہیں تھا, وہ اس کو ولی اللہ مانتا تھا, اس کو مجدد مانتا تھا اور نبی دیکھیے بھی یہ مانتا بحث تھا. قادیانی لوری بھی مرزا قادیانی کو نبی مانتے, وہ بھی نبی مانتا تھا. تو اس سے دیکھو سوال تو میرا کہا تھا, اب مجھے کہاں سے کہاں لے جا رہے ہو بھائی. نہیں, میں ادھر ہی سوال ادھر کا ادھر ہی ہے, کہاں کا کہاں نہیں ہے. سوال یہی تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوں یا مردہ ہوں, مردے کی زنا کاری کا اس مسئلے سے کیا تعلق؟ اس کا جواب دیں آپ. نہیں اس سے اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں. کیا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام, آپ کہہ رہے تھے کہ اگر قرآن, وہ جو قرآن پیش کرتا ہے, اگر قرآن اس کا ساتھ دے رہا ہے تو میں اس کا ساتھ دیتا ہوں. آپ ایسا ہی ہے نا, ساتھ اس کا دے رہے ہیں نا مرزا قادیانی. بالکل بالکل ایسی بات ہے. اگر بالکل. اب آپ بھی مرزا قادیانی کے مرید ہو گئے اور اس کی جناب دعوی نبوت کو آپ نے تسلیم کر لیا, ایسا ہی ہے نا. دیکھو جو قرآن کہہ رہا ہے اسی کو ماننا چاہیے, اس میں کیا ہے. بھائی مجھے یہ بتائیں, مرزا قادیانی کی زنا کاری کا اس حیات اور وفات مسیح سے کیا تعلق ہے؟ اس کا جواب کیوں نہیں دے رہے آپ؟ یہ تمام باتیں جو آپ نے ابھی دکھائی, یہ سب کیا رچا تمام ہے. باتیں؟ یہ ساری باتیں جو ابھی آپ نے دکھائی, یہ ساری باتیں خود ساختہ چیزیں. یہ خود ساختہ نہیں ہے. اگر خود ساختہ ہو, منہ منگا انعام میں ابھی اعلان کرتا ہوں. اگر یہ قادیانی اخبار کے اندر نہ ہو, منہ منگا انعام میں ابھی دوں گا آپ کو. جائے. اچھا چلو ٹھیک ہے. کیا ٹھیک ہے؟ مرزا بزانی ثابت ہو گئے نا. ہاں دوڑ گئے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ اوپر آئے سمیر صاحب. یہی ثبوت ہوتا ہے جھوٹے ایک منٹ جی, آدمیوں کا. ایک منٹ خان صاحب, ایک منٹ رک جائیں, ابھی نہیں کوئی بولے گا. سمیر صاحب اوپر آئیے, جلدی آئیے. یہ غلط بات ہے. آج اس مسئلے کو حل کریں. ہوا ادھر کی چلے ادھر کی چلے, عیسیٰ کو زندہ ثابت کر کے دکھا دو. یہ کون سا ڈرامہ لگایا ہوا ہے تم لوگوں نے؟ مرزا کی زنا کاری پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ مربی جی جلدی آئیں, سامنے آئیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اچھا فیصل بھائی بھی آ گئے, السلام علیکم. ذیشان صاحب بھی آ گئے ہیں, قادیانی مربی صاحب. جی جناب ذیشان صاحب. جی میرا ایک سوال ہے. سوال نہیں ہے ہمارا, یہ سوال جو ہے کہ مرزا قادیانی زانی تھا, ابھی میں نے ثابت کر دیا ہے. اس زنا کاری کا, اس زانی انسان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے یا مردہ ہونے سے کیا تعلق ہے؟ اس کا جواب چاہیے بس. دیکھیں آپ سے کسی نے مانگا نہیں ہے کون زانے کون زانے, اس کا ثبوت کسی نے مانگا نہیں ہے. کیا مانگا نہیں ہے؟ میں نے تو آپ ایسا کریں, ابھی ثبوت دی ہے, ابھی آپ ہی نہیں ثبوت مانگا کس نے آپ سے؟ آپ بھی دیکھ لیں. یہ دیکھیں, حضرت مسیح موعود ولی اللہ تھے, اور ولی اللہ بھی کبھی کبھی زنا کر لیا کرتے ہیں. اگر انہوں نے کبھی کبھار زنا کر لیا تو اس میں حرج کیا ہوا؟ بتائیں, اس کا جواب دیں. جواب میں دیتا ہوں. یہ جو ہے نا تحریر, یہ ایک نامعلوم بندے نے لکھی. نامعلوم نہیں, پیغامی تباہ تھا, لوری تھا, لوری قادیانی تھا. یہ نیچے ہی لکھا ہوا ہے. کیا ہو گیا؟ سن لو نا, سن لے گل. قادیانی لوری تھا. اور سن لے گل, ایک بندہ سی, او دا نام بھی نہ نہیں لکھیا وچ نا, کیڑا بندہ کہہ رہا ہے. دیکھو اس سے اعتراض سے پتہ لگتا ہے کہ یہ شخص پیغامی تباہ ہے. ہاں, یعنی کہ اس بندے کا نام نہیں تھا, ہاتھ آیا تھا ایک بندے. نام کو چھوڑیں, چھوڑیں گال تے سننا, چھوڑیں
था मुफ्ती साहब छोड़ी गल सुन नाम गल छोड़े सुनना चाहिए। मुफ्ती साहब एक खाकसार दा सवाल भी ऐड कर लो मुफ्ती देखें साहब कि इजाजत ये जो आप तहरीर लगा रहे हो, चुप यार एक नाम जिशान मालूम बंदे ने मुफ्ती साहब एक सारे खत लिखा, इख्तिमास दे नाम विच भी ना किते अपना बशीरुद्दीन बताया, महमूद ने उसने कहा इस कि तरह का गल झूठी बकवास है या किया नहीं ना, सी तो मुफ्ती ये साहब तो एक हवा ये में सारे फायर है, इख्तिबास दे उत्ते बशीरुद्दीन एक महमूद ने हवा में कितने फायर आखे है, ठीक है। कि ये गल झूठी इसलिए है ते ये मौलवी गल साहब सही नहीं। ओए चुप करा यार, बंदा नाल की टंगी नाल है। जिस टाइम ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਛੰਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਫ਼ਸ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा जिशान साहब ਤੁਸੀਂ अब जनाब ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਰ ਲਾਈ गलत ना, एक जुबान आप इस्तेमाल करेंगे ਗੱਲ तो सुनो फिर ना मुफ्ती साहब, गल मिर्जा सुनो कादियानी मुफ्ती को मैं भी साहब, कुत्ता साबित कर दूंगा अभी। देखें सुन ले गल, देखें ध्यान ऐसे गल नहीं। सुन लेना। अगर आपने कुत्ते कुत्ते वाली बात करनी है तो मैं इस पर भी बात कर लेता हूँ आपसे। अभी तो मिर्जे की ज़नाकारी पर ही रहे, मेहरबानी करें जी। देखें असूल ये है कि आपसे जिस चीज का कोई सबूत मांगा जाए, कोई दावा किया जाए, उस पर आप बारिश हाँ बिल्कुल, इस ज़नाकारी का बताइए कि मिर्जा अब आप ज़नी सुने, जो था अब मैं आपसे ये कभी कभी आपकी ज़ना औकात के मुताबिक, देखिए मैं आपकी औकात के मुताबिक आपसे मैं सबूत मांगता हूँ, ठीक है, आपके लेवल के, सबूत आपके अभी दिया मुताबिक ना। मैंने, आपका ओहो, अखबार आपका, मैं ये तो मेरा तो नहीं है जैद बकर के बारे में सबूत मैंने भाई। तो मांगा चले नहीं है। एक और सबूत दे दूं और इस मैं ज़नाकारी सोने का, एनवी एक कान और में सबूत दे जबाना, दूं, लो एक जो और मैं सबूत कहना दे पाया, दूं, एक और और सबूत दे दूं, ये ले जो ये ले, मैं कह ये रहा हूँ ले, उसको भी कान में एक और डालो सबूत, मियाँ। एक और किताब नफस का तेरा नाम बड़ा है गंदा खुतबाते है, बड़ा महमूद। पलीत है, नफस है यार सुने पलीत तो है, सही ना और भाई, सुने टपता ही रहता है। यार सुने तो सही ना। एक और सबूत खुतबाते महमूद है, सफा 534 है, साल है 1938। यहां पर भी लिखा है कि हजरत मसीह मऊद वली अल्लाह थे और वली अल्लाह भी कभी कभी जना कर लिया करते हैं। अगर उन्होंने कभी कभार जना कर लिया तो इसमें हर्ज क्या हुआ। फिर लिखा है कि हमें हजरत मसीह मुतरला शलवार पर इतराज नहीं, क्योंकि वो कभी कभी जना किया करते थे। हमें इतराज मौजूदा खलीफा पर है जो हर वक्त जना करता रहता है। इस इतराज से पता लगता है कि ये शख्स पैगामी तबाह है। दो सबूत मैंने दे दिए, करिए बात। जिशान साहब जवाब दीजिए, दो सबूत हो गए हैं, मजीद और सबूत मैं बाद में दूंगा। कोई यहाँ पर इंसान है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलाक के मुताबिक बात कर। मिर्जा कादियानी जानी था, इसकी जनाकारी का क्या जवाब है? इस कुत्ते को बांध दो, इस कुत्ते को बांध दो। मिर्जा कादियानी अब देखिए आपने कुत्ते कुत्ता मुझे भी कहना शुरू कर दिया ना। अब मैं भी हक बजाना दूं कि मैं पूरा पूरा जवाब दूं। सुने करने के लिए रूहानी खज़ाइन जिल्द 4 सफा 334 आसमानी फैसला के अंदर मिर्जा कादियानी कहता है अगर वो मुझ पर राजी नहीं और मैं उसकी निगाह में बुरा हूं तो फिर कुत्ते की तरह क्या 1000 दर्जे कुत्तों से बदतर हूं। मिर्जा कादियानी कहता है मैं कादियान के गली के कुत्तों में से बदतरीन कुत्ता हूं जी। अभी तो मिर्जे की जनाकारी पे बात हो रही है, उस पर ही रहने दें। अभी कुत्तिया कुत्तिया ना खेलें, नहीं तो ये फिर कुत्तिया कुत्तिया काम खराब हो जाएगा, ठीक है। अभी कुत्तिया कुत्तिया ना करें, अभी इस जनाकारी का कुछ जवाब दें। वो जो पीर मेहर शाह साहब ने कहा है कि तरन्नुम में और तरन्नुम में कुत्तिया छोड़ दे, चिश्ती रसूल अल्लाह जो उसने कहा है पीर मेहर शाह ने, उसका सबूत तो दे कुरान शरीफ से यार। चले सवाल मेरा ये था, दलील अब देने लगा हूं, तीसरी दलील। और मेरा सवाल सुनो, जो मैं सवाल कह रहा हूं उसका मिर्जे की जनाकारी की तीसरी दलील। ये अल फजल अखबार है, 8 दिसंबर 1938 का शुमारा है, सफा नंबर 5 है। यहां पर कहते हैं कि वो जानते हैं कि जो बातें आज मिस्री साहब मेरे मुतल्लक कह रहे हैं, ऐसी ही बातें उनकी पार्टी के बाज आदमी हजरत मसीह मुतरला शलवार के मुतल्लक कहा करते थे। बस ऐसी बातें कहना कोई सबूत होता है तो फिर इन्हें हजरत मसीह मुतरला शलवार को भी छोड़ देना चाहिए। ये बशीरुद्दीन महमूद को लोग कहा करते थे कि तुम जानी हो, तुम बच्चेबाज हो, बच्चेबाजी करते हो। तो बशीरुद्दीन महमूद कहने लगा कि इसी तरह की बातें लोग मिर्जा कादियानी के दौर के अंदर भी कहा करते थे कि मिर्जा कादियानी बच्चेबाज है, मिर्जा कादियानी जानी है। ये तीसरा सबूत दे रहा हूं। अपने उत्ते
मिर्जे की जनाकारी, बच्चेबाजी और हरामकारी का तीसरा सबूत दे रहा हूं, दे जवाब इसका। क्यों तेरा राह टपदियां पिया ने? जवाब दे मुझे आज। देख तेरे घर दे निशान मसले साहब जेड़े नहीं, ने मैं उन्हां दी हिल्लण नहीं बड़ास देना इत्थे तुहानू। ना कढ। हिल्लण नहीं इत्थे बंदे देना। बैठे ने सियाली ना, साहब बड़े अच्छे तरीके ना, बात ना, गल जवाब करदे दे, ने। जवाब दे तू इसका, राह जवाब दे। ਜਾਂਦਾ आके बराड़ राब करना आके तेरी और ठीक है सियालवी साहब जो है ना अभी मसरूफ है, जवाब दो इसका, जवाब दो, जवाब आज मैं लेना है। देखो ਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ कह लो, इस जानी का ताल्लुक वफाते मसीह से क्या है, इसका जवाब दो। तू सठिया गया, तेरा भाई जानी आदमी का ताल्लुक वफाते मसीह के मसले से क्या है, इसका जवाब चाहिए। तेरा कीदा समझ आ गई, वो खत्म हो गया। जानी का ताल्लुक जो है वफाते मसीह से क्या है, इसका जवाब चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि यार कोई माइक म्यूट ना करे यार, मॉडरेटर माइक म्यूट ना करे। देख मौलवी मेरे पता है कि तेरा जरा कीदा सी ना वो गलत साबित हो गया, तू गया सठिया। ठीक है कीदा मेरा गलत साबित हो गया ना, मेरे गलत कीदे साबित होने सुन ना गलत सुन ले गल मैं तेरी जानी ने क्या ओ जना मैं वेला तेरे तेरा जानी प्रोग्राम मैं सुनया ना वेला मैं तेरा प्रोग्राम गलत सुनया मैं बना यार दिशान एक मिनट ओ गलत मैं बना यार बस ठीक हो गया ना। और मैंने गल करन दे मैं कुछ मेरे गलत होने नाल ए जानी जड़ा वे क्या उन्हें जना ओदा खत्म हो गया दस चुप करना गल तो सुन लेना। दस देख मैं तेरा भौंकना सुनना पे बड़े सबर तहम्मुल नाल 2 टक्के तेरी गुफ्तगू है। ऐस बराड़ ते सियालवी साहब आके बड़े तहम्मुल नाल गल करदे ने, उन्हां बड़े तहम्मुल नाल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵਾਂ तू हाम हाथ मिर्जा कादियानी जानी ਦਾ ਤਾਲਕ इन्हां दी बड़ा बराड़ तो खराब करना आ गया। बड़े देखो तहम्मुल नाल गल सुनना गल तो सुन ले वेला इत्थे यकीन कर रोजाना गल हुंदी है। सियालवी साहब बड़े तहम्मुल नाल सबर नाल अपना मौका पेश करदे ने, साडा भी सुनदे ने ते तू हाम हाक इन्हां दी जड़ी है ना बराड़ जान के यार दलील ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ एक अगर समझ यार तेरे घर दे मसले खराब ने, तू बड़ा करना पिया इस वास्ते ठीक हो गया। मेरे घर दे मसले खराब ने नहीं खराब, मेरा नक डिंगा है, मेरा मेरियां अखां भेंगियां ने, यकीन कर तेरे बड़ा फायदा होएगा। बस जो भी है वे ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੀ मसले हल कर लेगा घर दे ते तेरा फायदा हो जाएगा, वरना इत्थे बड़ास करदा रहेगा तो जानी दा कोई हल खराब हो जाएगी। ए मसीह जानी दा कोई हल कढना जे अज मसीह जानी दा कोई हल कढना जे मेरे पता है यार तेरे तू यानी कि की कहदे ने कि तू बौंतर गया। अच्छा यार निशान एक पोली जी गल गया क्योंकि यार तेरा कीदा हो गया गलत साबित गलत कीदा हो गया। तेरा सारा दिन जैसे ना बनी इसराइल नबी दे मोहताज ही वैसी अब ठीक हो गया ना। हुकूमत देगा इस वास्ते सबर कर यार, सच्चाई माननी चाहिए। तू अन्नेवा ना हो, घर दे तेरे हालात खराब ने ओदी बड़ा कितना कर क्यों 40 साल की बराड़ खराब करना। एक मिनट दिशान जरा रुकना, दिशान तू मेरी जातियात है ना, एक छोटा जा मैं सवाल करन लगा, मैं तेरा माइक म्यूट खुद कीता है। अच्छा तू मेरी पूरा कायदा है, बंदा बड़ा बार ही करदा है जेदी कार चोदी होवे। तेरे घर चीज बड़ा से ना तेरा अपना किरदार ठीक खामोश जी सर। शाह साहब ज़ीशान साहब का मुतालबा मैं पूरा कर देता हूँ, मेरे पास शोर है इसलिए मैं लाइव नहीं था। मैं बड़े तहम्मुल से पूछता हूँ कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब के बारे में जिना के जो ये हवाले हैं कि वो जिना करते थे, इसका जवाब दे दें ज़ीशान साहब। शाह साहब की तरह नहीं, मैं तहम्मुल के साथ पूछ रहा हूँ, इसका जवाब दे। देखिए कितना अच्छा आपने जो था वो खत्म कर दिया। अब आपने कितने से सवाल किया ना, देखिए जो मुफ्ती साहब के पास जो हवाला है ना, वो हवाला है एक अन्य एक बंदा था मुनाफिक, उसने अपना नाम छुपा कर एक उसने खत लिख दिया, हुजूर को खत लिख दिया ना, वो भी खलीफातुल मसीह सानी को। उस वक्त मसीह जो मौजूद नहीं थे ना, उनकी वफात के बाद उसने यानी उसको पेशाद किया गया, ये देख लो कि ये बंदा पैगामी हो सकता है जो बागी है, और उसने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर दिए हैं, अपनी शनाख्त भी नहीं बताई। अब अन्य बात 3 बंदा मार दे उस पर बंदा कहे बोले इसकी गवाही ले लो भाई, वो बंदा तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ज़ीशान साहिब मसला ये है कि आपके खलीफा मिर्जा कादियानी के बेटे वो खुतबा जुमा में ये
खत सुना रहे हैं, वो अपनी किताबों में लिख रहे हैं, वो बार बार रिपोर्ट हो रहा है। अगर इतना ही वो मुनाफिक था, वो बेतबारा था, तो उसको इतनी वक़्त क्यों दी जा रही है? जाहिर में कुछ जरूर काला है, तो मैंने अब काला तहम्मुल नहीं, के साथ देखो। पूछा है। सैर तो साहब आप देखिए, मैं मोहम्मद जी, एक बंदा होता है ना, एक बंदा सुने, सैर साहब सुने बात, इधर सैर साहब बहुत बंदा एक शोर होता है, तो इसलिए मैं सैर अब साहब बंद एक करूं। बंदा मैंने अगर तहम्मुल से सवाल आपको पेश कर दिया, तो शाह साहब को जवाब पहली दे बात दें। सैयरी साहब, पहली बात सुन ले, जब बंदा एक मुदी मौजूद हो ना, जैसे मिर्जा साहब मौजूद थे, उस वक्त किसी बंदे ने ये नहीं कहा कि मिर्जा साहब जो है इस तरह के काम करते थे, बल्कि सारे कहते थे कि ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह सच्चे हैं। मिर्जा साहब की जिंदगी में जो मुहातवीन थे, मुहालिफ क्या हो गए क्या मुवाफिक, सब ने ये ऐलान किया कि इनकी जाती अक़दस बाबरकत पर स्याही का छोटे से छोटा धब्बा भी नजर नहीं आता। किरदार इतना पाक साफ है कि बिल्कुल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की तरह। आप जी, जीशान आपकी साहब, जिंदगी में खामोश इस तरह का बयान, अब ये खामोश हूँ, सुने, आप झूठ बोल रहे हैं। मिर्जा कादियानी का पूरा टब्बर, पूरी बिरादरी और पूरी दुनिया उसे मक्कार, हरामखोर, ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने खुद लिखा है कि लोग मुझे इन दावी में झूठा समझते हैं, मक्कार समझते हैं, हरामखोर समझते हैं। आप ये कौन सी बात कर रहे हैं कि सारे मुखालिफ, मुवाफिक, सारे बड़ा साहब दावी में तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान में कोट है ना कि लोग इनको काज़ब समझते हैं, नाउज़ बिल्लाह। कुरान में ये लिखा है ना कि लोग जो थे वो कहते थे कि ये सख्त झूठा है। अब दावे की जी शातमियत कर रहे हैं जीशान साहब, फिर आप शातमियत कर रहे शातमियत पर हैं, उतर आए हैं। शातमियत पे उतर रहे हैं आप। देख कुरान ले कह रहा है, फिर कुरान कह रहा है कि मिर्ज़ा कादियानी जानी दावे को की मैं बुनियाद हरामी पर साबित कर रहा जो हूँ। लोग थे मैं वो अपनी दावे की दूसरी वजह आईडी से के ऊपर दावत मैं कबूल उस जिनको हुआ। हरामी साबित कर रहा हूँ। 6 वीडियो और 6 दलीलें मैं दे चुका हूँ। ये तुम लोगों की इस शातमियत की वजह से मैंने आ गए ये हैं, सिलसिला उनको शुरू बात करने किया को कि मिर्जा सीखो। कादियानी को मैं हरामी साबित करने के ऊपर मजबूर हो गया हूँ। तुम्हारी किताबों से निकाल के मैं साबित कर रहा हूं कि मिर्जा कादियानी हरामी था। अभी मैं एक नई सीरियल शुरू करने लगा हूं, मिर्जे को कंजर साबित करना, कंजर कहते थे आपकी तरह के मिर्जे को कंजर साबित करने की मैं अभी सीरियल शुरू करूंगा। अब सियालवी साहब को बात तो ये करने दो, आप मेरे साथ ये नहीं करनी, शातमियत नहीं करनी। मिर्जे कादियानी जानी का कोई अपने घर में जो शाबाश बारह टाउन टाउन करो। अच्छा जी, शाबाश। अब मैं कुछ दलाइल, चलो शाबाश, यहाँ पे टाउन 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 कर रहे हो, बराड़ कुछ और दलाइल देने लगा हूँ, कुछ और। दिशान साहब बोर्ड आ गया यार, एक मिनट जी, माइक म्यूट करिएगा जनाब। अच्छा, सियाली साहब, मिर्जा कादियानी के जानी होने का और रंडीबाज होने के सबूत अब मैं मजीद देने लगा हूं। साहब बात करते हो, चुप करना जरा, सवाल करते हो, जवाब देते चुप हो, कर, जिस बंदे को ओ खामोश हो, खामोश हो। ये देख, मिर्जा कादियानी का जैली साहबी मुफ्ती सादक अपनी किताब जिक्र खबीस के सफ़ा 38 के ऊपर लिखता है, हजरत मसीह मूतरला शलवार के अंदरूने खाना एक नीम दीवानी सी औरत बतौर खादमा के रहा करती थी। एक दफा उसने क्या हरकत की कि जिस कमरे में हजरत साहब बैठकर लिखने पढ़ने का काम करते थे, वहां एक कोने में खुरा था जिसके पास पानी के गड़े रखे थे। वहां अपने कपड़े उतार कर नंगी बैठकर नहाने लग गई, नंगी बैठकर नहाने लग गई। हजरत साहब अपने काम तहरीर में मसरूफ रहे और कुछ ख्याल ना किया कि वो क्या करती है। जब वो नहा चुकी तो एक और खादमा इत्फाकन आ निकली। उसने उस नीम दीवानी को मलामत की कि हजरत साहब के कमरे में और मौजूदगी के वक्त तूने ये क्या हरकत की। तो उसने हंस कर जवाब दिया, उन्हों को जदीदा है, यानी उसे क्या दिखाई देता है। यहां से 2-3 बातें, अब निकल गए हो, निकल गए हो। दूसरा कादियानी आया, वो भी निकल गया भाई। और मिर्जे की ज़नाकारी पे बात क्यों नहीं करते तुम, हैं? अभी और मोअज़्ज़िज़ीन आए हुए हैं। फैसल, आप कोई बात करना चाहते हैं? मुफ्ती साहब चलो वो तो गया नास से, लेकिन सवाल साडा वैलिड है कि नहीं है। कोई जगह दिखाओ बशीरुद्दीन महमूद ने क्या होवे कि हकीकत जड़ी मैं लिखना पे है ये हकीकत नहीं की, कितरे दा इनकार किया होवे कि ये गल की सी, या कितरे और लिखिया होवे कि गल वाकया ऐ नहीं सी है। उन्हें तो वाकया बयान किया है अपने बचाने वास्ते कि मेरा प्यो भी करता सी ते मैं भी कर लिया, ते किहड़ी गल है। ਇਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਦਿਖਾਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ।
ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜਮਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ जगह देनी। जी मेहरबानी मेहरबानी, बहुत बहुत खूबसूरत आपने बयान किया मिर्जा के बारे में, लेकिन वो झूठा था, वो जो शाह जी शान झूठा था, जवाब नहीं दे पाया, भाग गया। तो जिस स्पीड से आप जा रहे हैं, बराए करम वो भी लेटर दिखला दें जो मिर्जा लाहौर भेजा करता था शराब के लिए, जाओ शराब ले जाओ फलां बोतल से, अगर मुनासिब समझते हैं, टाइम है तो। जी यही मैं मेरा वो सवाल। शराब वाला वो टानक वाइन वाला दिखा देता हूँ, आप बात कर थैंक यू वेरी लें। मच। हाँ जी, जी, जी। पहले आपने जरा दिखाया, अब शराब वाला दिखा दें। थैंक यू शराब वेरी वाला मच। ये हवाला फिर- जमरोज फिर- खान साहब की ख्वाहिश के ऊपर मैं पेश कर रहा हूँ। ये एक किताब है खतूत इमाम बनाम गुलाम, जो कि हकीम मोहम्मद हुसैन कादियानी था, जो लाहौर में रहा करता था। ये हकीम ठीक है ना, हकीम मोहम्मद हुसैन करशी, तो ये असल में कादियानी था, तो ये लाहौर में था। तो ये ना इसको वक्तन फवक्तन मिर्जा कादियानी इसको खत लिखा करता था। तो उसने सारे खतूत एक जगह पे जमा करके उस किताब का नाम रखा है खतूत इमाम बनाम गुलाम। इसके सफा नंबर 5 के ऊपर एक खत है ये वाला। ये खत मिर्जा कादियानी ने काजी यार मोहम्मद के हाथ भेजा था। ये काजी यार मोहम्मद वो ही है कि जो मिर्जा गुलाम कादियानी को नमाज के अंदर पीछे से उसकी मकद के अंदर उंगल दिया करता था और बड़ी तकलीफ का बायस बनता था, और उसकी वजह से मिर्जा कादियानी जो है ना सफ़े बदलता रहता था। ये वही काजी यार मोहम्मद है कि जिसको कादियान के मुर्दों के कफन चोरी करने की आदत पड़ गई थी, तो वो सारे फिर उसने कफन बेच के तो वो पैसा जो था कफन चोरी का वो मिर्जे कादियानी की जेब के अंदर ला के डाल दिया था। ये वही काजी यार मोहम्मद है जिसको बच्चेबाजी की आदत थी, और मिर्जे कादियानी ने खुद इस काजी यार मोहम्मद को जामिया अहमदिया जो पहला था उसके अंदर बतौर टीचर के रखा था। तो बहरहाल इस काजी यार मोहम्मद के बड़े बड़े कारनामे हैं। तो ये सुनिए जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। इस वक्त मियाँ यार मोहम्मद भेजा जाता है, मियाँ यार मोहम्मद यानी काजी यार मोहम्मद भेजा जाता है, आप अशिया खुर्दनी खुद खरीद दें और एक बोतल टानक वाइन की प्लूमर की दुकान से खरीद दें, मगर टानक वाइन चाहिए, इसका लिहाज रहे, बाकी खरीयत है वसलाम मिर्जा गुलाम कादियानी। ठीक है जी। तो ये जमरोज खान साहब ने कहा था, तो मैंने वो हवाला पेश कर दिए। थैंक यू, ये बहुत शुक्रिया। जी जजाक। अच्छा ये एक मलक भाई बैठे हुए हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब क्या हाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी करो जी गल। मिर्जे गुलाम कादियानी ਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ 2 ਨੰਬਰ ਬੀਵੀ ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਮੁੰਡੇ ਔਰ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ 2 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਛਾਇਆ ਹੋਈ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਫੈਜ਼ ਭਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਬਸ਼ੀਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਤੋਂ 3 ਹਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਹਿਰੀਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਵੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਖਲੀਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮਸਲਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਚਲੋ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜ਼ਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜ਼ਨਾ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਨਾ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਮਾਤੀ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਮੁਰੱਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤੀ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਤੀ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਬਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਜਮਾਤੀ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਇਸੇ ਹੀ ਮੁਰੱਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਸਰਤ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 112 ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ 112 ਬੱਚੀਆਂ ਉਹ ਨੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਕੀਤੇ ਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੀਫੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੱਬੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰੀਰਾਤ ਨੇ ਜਮਾਤ-ਏ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੀ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਹੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੀ ਪਈ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਸਹਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਇਤਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਔਲੀਏ ਉਜ਼ਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਮਾਤ-ਏ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਐਸੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਿਰਜ਼ੇ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਰਕਾਰ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਇਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨਬੀ ਮਾਜ਼ੱਲਾ ਔਰ ਮੂਤਰ ਅਲੈਹ ਸ਼ਲਵਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹ ਤਮਾਮ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। और मुफ्ती साहब ने माशाल्लाह फरमाया नमाज का स्कॉटलैंड में टाइम हो गया, सिर्फ 1 मिनट की बात है। शाहजी किबला सैयद मुबशर शाह साहब ज़ीदा शरीफ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। वालेकुम बाकी साथियों को सलाम। ऐसे करें जी, एक है ना छोटा सा रसाला तरतीब दे दे साथी कोई, कादियान का शैतान से लेके निदा नसर तक का सफर। अच्छा बस जो इनके जो जिसने पढ़ना जो हवाला जात चले जी, मैं आपकी ख्वाहिश के ऊपर ये नोट कर लेता हूँ तो आजज ही ये काम कर देता है। हाँ जी, इंज दे काम करन से आजज बड़ा शेर है ना। कर दे और पढ़ दिया करें कि आखिर में ये लिख देना है कि आप लोगों ने करतूत ऐसे किए हैं कि मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। हाँ, बल्ले बल्ले, ठीक हो जाएगा जनाब। ठीक है शाह जी। अच्छा, यहाँ पर मैं एक थोड़ी सी नई रोशनी डालने लगा हूँ और कुछ दलाइल अब देने लगा हूँ, बड़ी तवज्जो से आपने देखने और सुनने। कादियानी जो है ना एक अलग उम्मत है जिनका उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ताल्लुक नहीं है। एक अलग से दीन है जिनका दीन मोहम्मदी से कोई ताल्लुक नहीं है और खुद इन्होंने तस्लीम किया हुआ है कि हमारा अलग दीन है, हमारा अलग सारा साहब निजाम अलग ही है। ठीक है जी। अच्छा, इस सिलसिले में पहला हवाला मैं देने लगा हूँ, सुनिए। ये अल फजल अखबार 3 फरवरी 1935 का शुमारा है, सफ़ा नंबर 5 है। लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने इस आखिरी सदाकत को कादियान के विनाना में नमूदार किया और हजरत मसीह मुतरला शलवार को जो फारसी नस्ल है इस अहम काम के लिए मुंतखब फरमाया। बुखारी किताबु तफसीर सूरह जुमा। और फरमाया, मैं तेरे नाम को दुनिया के किनारों तक पहुंचाऊंगा, जोर आवर हमलों से तेरी ताईद करूंगा और जो दीन तू लेकर आया है उसे तमाम दीगर अदियान पर बजरिया दलाइलो बराहीन गालब करूंगा और इसका गलबा दुनिया के आखिर तक कायम रखूंगा। इस एक हवाले से ये पता चलता है कि मिर्जा कादियानी एक अलग दीन लेके आया है जिसका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। हवाले नोट करिए, ये दलाइल नोट करिए, ये कादियानियों से आप लोगों ने सवालात करने हैं। इसके अलावा एक हवाला मैं देने लगा हूँ, ये रूहानी खजाइन जिल्द 5 सफ़ा 300
44 आईना कमालाते इस्लाम। मिर्जा कादियानी लिखता है जो शख्स नबूवत का दावा करेगा, तो मिर्जा कादियानी ने भी दावा किया नबूवत का, जो शख्स नबूवत का दावा करेगा उस दावा में जरूर है कि वो खुदा ताला की हस्ती का इकरार करे। तो मिर्जा कादियानी ने भी खुदा की हस्ती का इकरार किया और नीज ये भी कहे कि खुदा ताला की तरफ से मेरे पर वही नाजल होती है। मिर्जे ने भी कहा कि मेरे ऊपर खुदा ताला की तरफ से वही नाजल होती है। और नीज खलकुल्लाह को वो कलाम सुनावे जो उस पर खुदा ताला की तरफ से नाजल हुआ, उसने लोगों को सुनाया। ये तज़किरा मेरे सामने अभी रखी हुई है, ये पूरी मिर्जे के इल्हामात वाली किताब है, ठीक है ना जी। तो ये उसने लोगों को सुनाया। और अगली बात सुनिएगा, और एक उम्मत बनावे जो उसको नबी समझती और उसकी किताब को किताबुल्लाह जानती है, ठीक है जी। तो मिर्जे कादियानी ने जो है वो अपनी उम्मत अलग बनाई, जो उम्मत आज तक इस तज़किरा को खुदा का कलाम समझती है, वो उम्मत उसकी किताब को किताबुल्लाह जानती हो, वही उल्लाह जानती हो। तो बहरहाल ये कादियानी एक अलग उम्मत है, अलग दीन है। इसका ये दूसरा सबूत मैंने आपको दिए। 2 सबूत हो गए। एक तीसरी दलील मैं यहाँ पे पेश करूंगा कि मिर्जा कादियानी साहब शरीयत नबी था, वो एक अलग शरीयत लेके आया था। ये देखिए रूहानी खज़ाइन जिल्द 17 सफ़ा 435 के ऊपर मिर्जा कादियानी कहता है कि मां सिवा इसके ये भी तो समझो कि शरीयत क्या चीज है, जिसने अपनी वही के जरिए से चंद अमर और नही बयान किए और अपनी उम्मत के लिए एक कानून मुकर्रर किया, वही साहिब शरीयत हो गया। वो साहिब शरीयत नबी की डिटेल बता रहा है कि जिसके ऊपर वही नाजल हो और उसकी वही के अंदर अमर भी हो और नहीं भी हो, तो जिस नबी की वही में अमर और नहीं होते हैं उसको साहिब शरीयत नबी कहते हैं। अब वो अपनी मिसाल देता है, कहता है पस इस तारीफ की रूह से भी हमारे मुखालफ मुल्जम है, क्योंकि मेरी वही में अमर भी है और नहीं भी। मसलन ये वाला इल्हाम, वो आगे फिर अपना एक अरबी का इल्हाम लिखता है, ये अगले सफे पे कहता है ये बराहीने अहमदिया में दर्ज है और इसमें अमर भी है और नहीं भी, और इस पर 23 वर्ष की मुद्दत भी गुजर गई है, और ऐसा ही अब तक मेरी वही में अमर भी होते हैं और नहीं भी। ये है तज़किरा, ये है तज़किरा, ये है तज़किरा। तो ये पूरी जो है इसके अंदर अमर भी है और नहीं भी। ये है कादियानियों की शरीयत, ये है कादियानियों की शरीयत। समझ आई कि नहीं? तो यहाँ से बशीरे ने भी जिहड़ा है ना इस चीज ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤਜ਼ਕਰੇ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਾ ਕਰਨ ਕੁਰਾਨ ਸਮਝ ਕੇ। हाँ जी हाँ जी वो लिखे है, वो लिखे है ਉਹਦਾ ਚਲੋ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤਲਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਤਜ਼ਕਰਾ ਦੀ ਚਲੋ ਮਲਕ ਭਾਈ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਲੈ ਲਵੋ। ਮਜ਼ਾਮੀਨੇ ਬਸ਼ੀਰ जिल्द अव्वल और छोटा बशीरा लिखदा है सफा नंबर 214 तज़किरा के बारे में जमात को पैगाम। कहता है आपको इल्म होगा कि जहां हजरत अमीरुल काफिरीन यद्दा जल्ला ने 3 साल गुजरे जलसा सालाना पर हबाब जमात को उनके तज़किया नफ्स के लिए हजरत मसीह मुतरला शलवार के इल्हामात के मजमुआ की बिल इल्तजाम तलावत करने की ताकीद फरमाई थी, और इससे जो फ़वायद हासिल किए जा सकते हैं इनका जिक्र फरमाया था। तिलावत, तो ये लोग तज़किरा की तिलावत करते हैं,
ये है कादियानियों का कुरान। ठीक है जी। अच्छा, एक हवाला और मैं दे के तो फिर अपनी गुफ्तगू को अब वाइंड अप करूंगा और गुफ्तगू फिर आगे बढ़ाएंगे। ये ले, ये देखिए जनाब, ये अल फजल अखबार 21 अगस्त 1917 का शुमारा है, सफा नंबर 8 है। मिर्जा कादियानी लिखता है कि मुसलमानों के साथ हमारा बहुत बड़ा इख्तलाफ है, बहुत बड़ा इख्तलाफ है, वरना हजरत मसीह मुतल्ला शलवार ने फरमाया है कि उनका इस्लाम और है, हमारा इस्लाम और, यानी मुसलमानों का इस्लाम कोई और है, हमारा कोई और। ये मिर्जा जूनियर जेलमी ने भी जो नारा लगाया ना, बाबों का खुदा कोई और, किताबों का कोई और, उसने मिर्जे कादियानी के इस दावे से वो नारा बनाया है। तो ये दोनों, छोटा मिर्जा और बड़ा मिर्जा एक ही है। उनका इस्लाम और है, हमारा और, उनका खुदा और है, हमारा खुदा और, हमारा हज और है, उनका हज और इसी तरह उनसे हर बात में इख्तलाफ है। ये जो कादियानी कहते हैं हम बड़े बड़े मुसलमान हैं, तो भाई इनका इस्लाम कोई और है, हमारा इस्लाम कोई और, इनका दीन कोई और है, हमारा दीन कोई और, इनका कुरान कोई और, हमारा कुरान कोई और, इनका काबा कोई और, हमारा काबा कोई और, इनका अल्लाह कोई और, हमारा अल्लाह कोई और। हर चीज के अंदर इख्तलाफ है। ये सबूत आपके सामने। तो मैंने ये चंद दलाइल दिए हैं। तो यहाँ पे जोगी भाई बैठे हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, करें बात। जी जोगी साहब, जी अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम भाइयों को सलाम। बाकी कादियों के ऊपर ढेर सारे समझ तो गए होंगे कादियानी। अच्छा हजूर, मुझे वो थोड़ा सा ये चाहिए था कि ये एक मिर्ज़ा जो है अपने बाप की वफ़ात के 5 साल बाद पैदा हुआ, इसके ऊपर थोड़े से रहनुमाई फरमा जी लीजिए। इसका सबूत आपको मिलेगा विकीपीडिया के ऊपर। विकीपीडिया में आपने गुलाम मुर्तजा सर्च कर लें, ठीक है, या आप जाएं मिर्जा गुलाम कादियानी के ऊपर, तो उसके बाप का नाम लिखा होगा, वो नीले रंग का होगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो गुलाम मुर्तजा का पूरा पेज खुल जाएगा, उसी के अंदर लिखा हुआ है। इसका सबूत उसके अंदर आपको मिल जाएगा। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप पढ़ सकते हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया जो, बहुत शुक्रिया जी। मुफ्ती साहब, ਇਹ तो ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ 10 ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। और नहीं, वो एक अलग चीज है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਵੈਸੇ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਵੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਗਾਇਬ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵੜਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਫਿਰ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝੀ ਅੱਜ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਦੁਕਾਨ ਅੱਜ ਸਹੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਅਕਸਰ ਆ ਕੇ ਜੁਗਤ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਢਾਏ ਚੜ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦੁਕਾਨ ਮੇਰੀ ਸਹੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਤੇ 2 ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਅੱਜ ਸਹੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਹੀ ਟੁਰੀ ਹੈ ਅੱਜ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ ਫਿਰ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਟੋਰੋ ਅੱਗੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਟਾਂਗਾ ਟੋਰੋ ਕੋਈ। ਤਜ਼ਕਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਜ਼ਕਰੇ ਵਾਲੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ
ਕਿ ਕਿਆ ਅੰਬੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਹਾਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਬੇਹੂਦਾ ਅਮਰ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਜ਼ਕਰਾ ਫੜਿਆ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਜ਼ਕਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਲਹਾਮ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਪਸਤੌਲ ਵਾਲਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਸਤੌਲ ਵਾਲਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ, ਇਧਰ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਾਹ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਨੇ ਨਾਮ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਕਦੀ ਪਹਿਲੇ? ਜੀ ਜੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਦਾਅਵੇ ਇਜਾਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਨਿਸਬਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਾ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੌਹੀਦ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵਹਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਫਸੀਲ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਮੌਜੂਦ। ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਜਿਲਦ 17 ਸਫਾ 413, ठीक है। अच्छा जी, मिर्जा कादियानी लिखता है, मेरी निस्बत बतौर इस्तियारा के फरिश्ता का लफ्ज आ गया। हेलो, आंदा कि मैनू ना खुदा ने कहा कि तू फरिश्ता है। और दानिएल नबी ने अपनी किताब में मेरा नाम मेकाइल रखा है। और अबरानी में लफ्सी माना मेकाइल के हैं, खुदा की मानिंद। ये गोया इस इल्हाम के मुताबिक है जो बराहीन अहमदिया में है कि अंता मिन्नी बिमंज़िलती तौहीदी व तफरीदी, यानी तू मुझसे ऐसा कुर्ब रखता है और ऐसा ही मैं तुझसे चाहता हूँ जैसा कि अपनी तौहीद और तफरीद को। सो जैसा कि मैं अपनी तौहीद की शोहरत चाहता हूँ, ऐसा ही तुझे दुनिया में मशहूर करूँगा। और हर जगह जो मेरा नाम जाएगा तो तेरा नाम भी साथ जाएगा। तो ये है जी, ये मिर्जा जी फरिश्ता भी बन गए मेकाइल। और ये जो इसने कहा है ना, इसका मतलब होता है खुदा की मानिंद। ये मिर्जे कादियानी ने बहुत बड़ी गप मारी है। दुनिया का कोई कादियानी आ जाए, मुझे मेकाइल का तर्जुमा ये खुदा की मानिंद निकाल के दिखा दे, तो 100 जुत्ती मैं उन्होंने लावांगा ਉਹਦੀ ਪਛਵਾੜੇ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਵਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 100 ਲਿੱਤਰ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਆਓ ਭਾਈ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਾਬਤ ਕਰੋ, ਦੁਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਜੇ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਮਲਕ? ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੀ ਹਮ ਕੁਰਾਨ ਸੇ ਬਾਤ ਕरेंगे, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਲਾਈਵ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਜ਼ਕਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ। ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਭਰਾ ਨਾ ਕੁਝ ਬਸ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਤਲਕ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਤਲਕ ਰੱਤੀ ਬਰਾਬਰ? ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਬਸ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਬਾਰਤ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠਾ ਜਾਂ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਔਰ ਖਿਆਨਤ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਖਿਆਨਤ ਪੇਸ਼ਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਹੀ ਕਿਤਾਬ। ਮਲਕ ਬੁਰਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੀ? ਜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਲਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਮਲਕ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਇੰਜ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਰਹਿਮ ਉਹ ਕਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਚੁਨੀਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਪੀਰ ਮਿਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦਾ ਦਸਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਈ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਟਿਕਟਕ ਛੱਡ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਟੁਰ ਚੱਲਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਸਣ ਲੱਗਾ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ ਬਈ? ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੇ ਪਏ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਏ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ 'ਚ ਆ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਛੱਡ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਹਾਂ, ਇਹ ਫਰਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਜਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰਗਾਹੇ ਆਲੀ ਤੋਂ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜੀ ਪਕੜਨੇ ਆ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਹਾਂਜੀ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਯਾਰ ਉਹ ਮਲਕ ਗੱਲ ਲੈ ਵੇ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਗ ਜਦੋਂ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਫੁੱਲਦਾਰ ਪੌਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਡੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਹ ਉਸ ਬਾਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਬਸ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਵਹੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੌਲਾਨਾ ਜ਼ਫਰੁल्लाह शाह साहब ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇੰਜ ਜੀਗਰ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਈਲ ਨੇ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮਲਕ, ਤੂੰ ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ? ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਕਿ ਯਾਰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾਲ ਚਲੋ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਲਿੱਤਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਇਹਦੀ ਕੁਤਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਲ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂ, ਨਾ ਬਾਈ ਨਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਿਰਫ ਜ਼ਾਤ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜ਼ਾਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਛੱਡ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਕਫ ਕੀਤੀ ਏ ਇਸ ਅਕੀਦਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਟੋਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਟੋਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਪੜ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਹਬੀਬ ਭਾਈ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਲਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਦਾ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਉਹ ਉਤਾਰ ਚੜਾਓ ਇਫਰਾਤੋ ਤਫਰੀਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਕੁਰਾਨ ਚ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਆਂਦਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਉਸਰੀ ਯੁਸਰਾ, ਆਂਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਾਨੀ ਜੇ। 2 ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, 2 ਵਾਰੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਸੀ, 2 ਵਾਰੀ ਤਕੀਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਛੜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਾਨੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਵੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਯਾਰ, ਕੱਲ ਸਿਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਆਸਾਨੀ ਖੜੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚਾਹਣਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖੋ, ਅੱਗੇ ਆਸਾਨੀ ਹੈ ਵੇ। ਮੈਂ ਯਤਵਕਲ ਅਲੱਲਾhi ਫਹੁਵਾ ਹਸਬੁਹੂ, ਜੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਤਵੱਕੁਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਵੱਕਲ ਰੱਖੋ ਅੱਲਾ ਤੇ। ਜਮਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਵਹਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। दोस्त का बार जनाब बार यारी भाਵੇਂ जवाब दे दियो, भाਵੇਂ खान साहब जवाब दे दें। खान साहब सवाल सुनिएगा, दोस्त पूछ रहे हैं। खान साहब सुन रहे हैं आप मेरी आवाज़? दोस्त पूछ रहे हैं कि ख़त्म नबूवत का असल मसला है क्या? ख़त्म नबूवत का असल मसला बता दें, तो आप दे दें या मुफ्ती साहब दे हैं, तो कल ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। अभी खान साहब से सुने। अच्छा चलो वो भी दिखाता हूँ। मिर्ज़ा साहब को शौक था ये मुनाजरे करने का, हमेश अखबारों में पम्फलेट करता था, इश्तिहार सो। तो ये मिर्ज़ा साहब ने अपने गिरदोनवा में किसी पादरी से या क्रिश्चियन से ये मबासा डिबेट किया। जिस शख्स ने ये सारा काम ऑर्गेनाइज किया था उसका नाम था मुंशी मोहम्मद इस्माइल। ये आपको नजर आ रहा जी? खान साहब सबको नजर आ रहा है? आप जी, बात जारी मैं पढ़ता रखें। हूँ। आपने माइक म्यूट किए हैं आपने। किसने? मैंने तो नहीं म्यूट नहीं किया, मेरा यान है मोहम्मद इस्माइल। जिसने मबासा कराया था वो ऐसा ही हो गया। मिर्ज़ा का मबासा सुनकर वो ऐसा ही हो गया। नंबर 2 मोहम्मद यूसुफ मरज़ई जो मबासा का सेक्रेटरी था, ऐसा ही हो गया। नंबर 3 मिर्ज़ा कादियानी की बीवी का खालाजाद भाई मीर मोहम्मद सईद, ऐसा ही हो गया। ये है जनाब मिर्ज़ा खान साहब। साहब इस किताब का नाम बता दें और सफ़ा बता दें। ये है जनाब राइटर है इसका, वो लाहौर के साहब है, मतीन खालिद साहब। किताब का नाम क्या है? किताब का नाम है सबूत हाज़िर है। हाँ, जिल्द कौन सी है? ये है, एक मिनट, सफ़ा मेरे सामने, वो जल्दी बताता हूँ। सफ़ा 238। 238 यानी 238। जिल्द कौन सी है? जी हाँ, तो ये है किताब का है, एक मिनट, तवज्जो फरमाएं। जिल्द लिखी होगी बाहर, क्योंकि उसकी 4 जिल्दें हैं ना। मुझे हंसी आ गई है। मेरे जानने वाले पाकिस्तानी जो मेरे गिरदोनवाब में रहते हैं वो आते हैं मेरे पास कभी कभार, ये किताबें ले जाते हैं पढ़ने के लिए। तो ये देखिए, ये है किताब का पहला पेज, जो लिड हैज बीन। पहला पेज ये नहीं है खान साहब, ये जिल्द होगी कोई, सबूत हाजिर है की। ओ चलो एक मिनट, तो आप बात की जारी रखिए, मैं दिखाता हूँ आपको प्लीज। ਤੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। मैं गुजारिश कर रहा हूँ तुसी बातचीत जारी रखो बाकी बंदियां नाल, मैं तुसानू दिखाना। ਅੱਛਾ, मिर्ज़ा साहब की ना- फैसल भाई ने ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ भी ਜਵਾਬ दिखाना, ਸੁਣ लो वो भाई। भी- अच्छा बताऊंगा, ठीक है, ओके। जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मुहतरम, सवाल है कि ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਲਦ ਉੱਤੇ। नजर ਥੋੜਾ आ ਜਿਹਾ गया? ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਕਰੋ, ਉੱਤੇ ਕਰੋ ਨਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਜੇ ਨੰਬਰ ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹਾਂਜੀ। ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੈ। 2 ਅੱਛਾ, ਜਿਲਦ ਦੇ। ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਜਰਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। इस काठी नू गौर ना देखिया हुण ये जा रही है परे, और बंदियां ने ला दी थी। चलो 238 ਸਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ। ਸਫਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ जी ਸਫਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖ सफा, ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ओ यार किताब तो मैं बंद कर दी थी, ये फिर लौटना पड़ेगा। 238 सी मेरे ख्याल। नहीं 238 ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा, फिर इसकी जिल्द में भी 1 हुआ है, 2 ना हुआ है। ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਕਰਮਾ ਲਿਓ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਲਿਖਿਆ 2 ਨੰਬਰ ਜਿਲਦ ਹੈ।
जरा देख लवो मैं सियालवी साहब नु कह रहा था ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ 1919 ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ 2019 ਜਰਾ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕੋ ਨਾ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਤਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਜੀ। ਐਸੀ ਪਿੱਡੀ ਜਿਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਰੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲਾ ਲਚਕਪਨ, ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਟੋਈਆਂ ਨਾ ਬਾਈ ਨਾ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੱਕੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਲੋਹਾ ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਨਾ ਸਕੇ। ठीक है ਹੁਣ जरा ध्यान ना सुन सो बराए करम ਇਹ ਨਾ Please, ਵਹਾਓ, ਸਬੂਤ- ਇਹ ਸਟਰਾਈਕ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੀ ਵਹਾਓ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ है जे बंदे ले ਕੋਈ ਇਹ वो ਪਿੱਛੇ बंदे ਕਰ मेरी ਲੋ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵਗੈरह ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਸਟਰਾਈਕ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਰਮਾ ਲਿਓ, ओके ਕੀ कर ਕਰਦੇ लिया यार बात की जारी रखो मैं वो अकीदा खत्म वो तो भाई नु बताना वा जी बिल्कुल। अच्छा जी सुने जी, बात ये है साहिबान के हमारा कादियानियों के साथ जो मसला है वो इस अकीदा ख़त्म नबूवत के ऊपर मसला नहीं है। कादियानी यही कहते हैं कि लो जी हमारा मरकजी इनसे इख्तलाफ अकीदा ख़त्म नबूवत के, नहीं, झूठ बोलते हैं। कादियानियों से हमारा जो मरकजी इख्तलाफ है ना वो ये है कि मिर्जे कादियानी नू पहले एक इंसान का पुत्र साबित करो, बस ये है इख्तलाफ, बस और कोई इख्तलाफ नहीं है। हम तो ये कहते हैं पहले उसको इंसान का बच्चा साबित कर लो, एक शरीफ इंसान साबित कर लो, उसके बाद देखेंगे उसके दावाजात कौन से हैं। दावाजात तो उसके लातादाद है, कोई एक तो दावा तो नहीं है। उसने सिर्फ कोई नबूवत का दावा ही तो नहीं किया, दावे तो लातादाद दावे हैं। कभी वो खुदाई का दावा करता है, कभी खुदा का बेटा होने का दावा करता है, खुदा की बीवी होने का दावा करता है। वो 1,24,000 कमो बेशंबिया और रसूल होने का दावा करता है। वो काबातुल्लाह वो बन रहा है, हजरे अस्वद वो बन रहा है, पता नहीं बला 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 क्या उसके दावा जा, तो फिर बड़े ही हैं, कोई एक दावा तो नहीं है उसका। तो हमारा मरकजी इख्तलाफ ये है कि मिर्जे कादियानी को पहले एक शरीफ इंसान साबित करो, ये है असल में मसला। हाँ जी, ये कौन आए हैं जी? मुजाहिद साहब करिए बात। एक्स कादियानी औरत ने मुजाहिदा नाम। अच्छा जी, मुजाहिदा साहिबा, आपने कोई बात करनी है मोहतरमा? जी जी जी, आप मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू जी, क्या हाल चाल है सब भाइयों का? ठीक ठाक जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी मुफ्ती साहब, मैंने एक सवाल करना है, काफी दिनों से मेरे जो है ना वो जहन में चल रहा है। वो मैंने कल एक भाई से किया था, वो मदनी भाई जो आते हैं उनको, वो कह रहे थे कि ना आप सियालवी भाई की ब्रॉड पे जाके कीजिए। तो वो टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है, अगर आप इजाजत देखते हैं तो मैं कर लेती हूँ। जी जी करिए करिए। सो मैंने ये सवाल करना था कि वैसे हम कहते हैं ना कि जो कादियानियत में रहते हुए फौत हो जाता है, ठीक है, तो वो कुफर पे मरता है, ऐसे ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मैंने सवाल ये करना था कि अगर मेरी आवाज पता नहीं क्यों रिपीट हो रही है, शायद मेरे हेडफोन्स का मसला या क्या। अच्छा, अगर एक ला इल्म कादियानी हो, जैसे अभी देखे ना, आज से कोई 20-25 साल पहले तो टिकटॉक मुझे नहीं पता होता था कि नहीं होता था, लेकिन इस तरह जिस तरह के अभी कादियानियत को हम अभी इधर टिकटॉक पे बैठे बैठे ऐसे उसको बता देते हैं हवाले और ये सारा कुछ। एक वो कादियानी जो अपने आप को मुसलमान समझता हो, जो चंदे भी देता हो, जो ये समझता हो जी कि हमें जो उसको चूरन बेचा जाता है वो उसी चूरन के ऊपर हो के जी हाँ भाई मैं तो 73वां फिरका भी हूँ, मैं तो जन्नती भी हूँ, ये है वो, और वो ला इल्म हो, वो अपने मुसलमानों के जो फराइज हैं वो सारे अदा करता हो, और उसने ना कभी हवाले पढ़े हो, कुछ भी नहीं पता उसको, कुछ भी ना पता हो, ठीक है, और वो मिर्जा गुलाम कादियानी को इमाम मेहदी ही मानता हो, ठीक है। तो अगर वो इस हालत में मर जाता है, ठीक है, तो उसका फिर क्या होगा? क्योंकि वो ला इल्म था, उसने सारी जिंदगी किताबें नहीं पढ़ी, वो पैदाइशी कादियानी अगर जो होते हैं उनको आपको पता है किताबें नहीं पढ़ते, तो उसके ऊपर क्या फिर होगा? कि मतलब उसको हम कहेंगे कि ये कुफर पे मौत हुई कि नहीं? जी मैं जवाब देता हूँ, माइक म्यूट कर ले, मैं जवाब। बात यह है कि शरीयत का कुछ मसला ऐसा है कि हालते कुफर में जिसका इंतकाल हुआ, शरीयत कहती है कि वो काफिर है,
मुफ्ती फतवा देगा कि बंदा काफिर है, ठीक है। शरीयत का हुक्म जाहिर के ऊपर लगता है, बातिन के ऊपर नहीं लगता। ज़ाहरी अमाल जिसके जैसे होंगे हुक्म वैसा लगेगा। एक चीज बीच में पड़ती है इंदल्ला, यानी अल्लाह के, मुफ्ती ने तो फतवा दे दिया कुफर का, लेकिन वो अल्लाह के नजदीक भी काफिर है कि नहीं? तो वो अल्लाह जाने, अल्लाह का काम जाने, मुफ्ती को जो हुक्म था उसने उस पर अमल कर दिए। तो यही है, अगर इस तरीके से दिलों के ऊपर फतवे लगाए जाएं या मतलब वो टामा टोइयां की जाए, तो ऐसे तो कोई काफिर फिर काफिर ही नहीं रहेगा। तो फिर तो कोई मुसलमान नहीं रहेगा। हो सकता है कि जिसको आप कह रही हैं कि बंदा मुसलमान मरा है, हो सकता है मरते वक्त वो काफिर हो गया हो, ठीक है ना। तो इन अल्लाह के मामले कुछ अलग हैं। तो हुक्म जाहिर के ऊपर लगेगा। ज़ाहरी तौर पे जो इस्लाम के अमाल और अकायद लेके मरा तो वो मुसलमान, उसके ऊपर हुक्म लगेगा। तो ज़ाहरी तौर पे जो काफरों के अकायद और अमाल लेके मरा उसके ऊपर हुक्म कुफर लगेगा। ये है बस। जी भाई। नहीं, लेकिन देखिए ना, अगर किसी ने किताबें नहीं पढ़ी हुई, मतलब उसको पता ही नहीं है कि इसने नबूवत का दावा किया हुआ है। मैं इस सिनेरियो में पूछ रही थी, ये मुझसे ना असल में ये सवाल मैंने भी पहले उठाया था कुछ पर्सनल वजूहात की वजह से, लेकिन ये सवाल मुझसे रिसेंटली एक खातून ने पूछा है, तो मैं इसलिए पूछना चाह रही हूँ। वो नहीं आती है सोशल मीडिया पे ना, तो मतलब कि वो किसी ने किताब पढ़ी ना हो, उसको पता ही ना हो कि इसने नबूवत का दावा किया है, तो उसके बारे में क्या अहकामात है? जी जज़ाकल्लाह। हाँ जी, दिलों का हमें कोई नहीं पता। बस ये है कि मिर्ज़े कादियानी को किसी तौर पर भी कोई मुसलमान मानने वाला, वली मानने वाला, मुजद्दद मानने वाला, इमाम मेहदी मानने वाला, कुछ भी मानने वाला, वो काफिर है, ठीक है जी। बकाया अल्लाह पाक जानता है, वल्लाहु आलम व रसूल। जी भाई। और मुझसे अगर फतवा तलब करेंगे तो मैं तो इससे थोड़ा सा और आगे का फतवा देता हूँ। वो ये कि मिर्ज़े कादियानी को कोई इंसान भी अगर मानता है ना, तो मैं तो उसके ऊपर भी बड़ी सख्ती करता हूँ। जी जी मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम, बैक अगैन। वो कोई भाई ने सवाल किया था अकीदा ख़त्म नबूवत पर, तो वो हैं भी या उसका चले जवाब गए? दे दिया है खान साहब। मैं दे दिया। वो कौन थे? अपना था, मुसलमान भाई था जी, या अपने वैसे वो? मुसलमान भाई थे, उसका जवाब दे दिया है ये। तो फिर चलो, अब ज़ाहिर है मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है जवाब देने की। तो आपने दे दिया, वही मेरा भी कहना है। या आप मुझसे ज़्यादा इल्म को समझते हैं, आलिम दीन भी हैं, तो ठीक है, फिर अब मैं खामोश हो जाता हूँ। यही बात है। जी जज़ाकल्लाह। बाजी कोई और Thank बात you. है? बाजी कोई बात करना चाह रही हैं? जी भाई, मुझे और कोई बात नहीं करनी, मैं नीचे चली जाती हूँ, जगह जी, चाहिए होगी शायद। जज़ाकल्लाह भाई, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब, मेरा एक सवाल है कि वो जी। मिर्ज़ा हरामी जो था, वो लाल गरारा वाला जो वाक़या है, यानी कि नहीं, वो इन्ना तुसी अटक के हरामी क्यों कहंदे हो पे? सर जी, मैं खुल के कहना नहीं, मतलब इंज तुसी इंज जिवें घबराए होए, घबरा के कहंदे हो। ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਹਰਾਮੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕਜ਼ਾਬ ਔਰ ਗਟਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਰ ਜੀ, ਉਹ ਲਾਲ ਗਰਾਰਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨੱਚਦਾ ਨੁੱਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਆਈਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਜੀ ਆਈਡੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਿੰਨ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜੇ, ਲਾਲ ਗਰਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਤੇ ਸਬੂਤ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਸਰੀ ਆਈਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀ ਜੇ, ਇਹ ਗਾਲਬਨ 4 ਹੈ, 4 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ 4। ਇਹੋ ਹੀ ਵੇਖੋ ਹਜ਼ਰਾ ਬੈਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ 4 ਹੈ ਤੇ ਉਹ 5 ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ 5 ਹੈ ਤੇ ਉਹ 4 ਹੋਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ 5 ਹੈ। ਇਹ 5 ਨਾ, ਉਹ 4 ਹੋਏਗੀ। 5 ਹਾਂਜੀ 5 ਜੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਰ, ਇਸੇ ਨਾਮ ਤੋਂ 4 ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰਚ ਕਰੀ ਆਈਡੀ ਤੇ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ 4 ਲਿਖੋਗੇ, ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਆ ਜੀ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀਆਂ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸ਼ੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਧਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,
ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੈਂ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਵਾ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਅਖਬਾਰ ਚਲੋ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਤੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕੱਢੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਵਾਲਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਵਹਾਣਾ ਸੀ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭ ਜਾਣੀਆਂ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਅਸਲ ਅਖਬਾਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੇਖੋ 35 ਤੇ 3 ਫਰਵਰੀ, 35 ਤੇ 3 ਫਰਵਰੀ ਹੈ, ਇਹ 35 ਤੇ ਇਹ ਫਰਵਰੀ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਅਸਲ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ 3 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸੀ ਇਹ ਸੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਇਹ ਵਿੰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਵਿੰਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਅਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਜ਼ੀਦ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵਿੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਜ਼ੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕੱਢੇ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਅਰਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਈਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਅਰਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕੋਰਸ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤਮਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਾਈਵ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਈਵ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਉਸ ਲਾਈਵ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਹੈ ਵੇ ਮਲਕ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਮੇਰੀ ਹਰ ਆਈਡੀ ਦੀ ਬਾਇਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬਕ ਉੱਥੇ ਆਨ ਕਰਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵਕਤਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਉਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤਬਾਹ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਐ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਏ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਬਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ ਬਈ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਤ ਟਾਈਮਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ ਹੈ 5 ਵਾਲੀ, ਇਸ ਆਈਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲਿੰਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਤੁਹਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ। ਭਾਈ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਆਈਡੀਆਂ ਤੇ ਲਾਏ ਜੇ, ਵੇਖੋ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬਾਵਾ ਜੀ ਸਿਰਫ WhatsApp ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਲੱਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ ਦਾ ਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਬਿਹਤਰ ਬਿਹਤਰ, ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਸਮਝੀਏ ਕਾਦੀਆਨੀਓ, ਮਰ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ, ਤਬਲੀਗ ਕਰ ਲੋ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਤੀਫਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਲਾਣੇ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, 5 ਮਿੰਟ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਮਿੰਟ ਡੇਢ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਪੈਂਟਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਲਤੀਫਾ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਨ ਨਾਲੇ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਊਟ ਆਫ डेट ਹਨ, आउट ऑफ टच, आउट ऑफ नॉलेज। पुराने ज़माने से लतीफ़ा ये है कि ये ऐसे ही हुआ जैसे एक भंगी था,
अफयून भी खाता था मिर्ज़े की तरह। वो जंगल में क़ज़ाए हाजत के लिए गया, पानी का लोटा भी साथ ले गया। लोटा टूटा हुआ था। उसने कहा मेरे क़ज़ाए हाजत के फ़ारिग होने तक ये पानी बह जाएगा, लिहाजा मैं पेशाब करने से पहले ही इस्तंजा कर लेता हूँ, पाखाना चलो बाद में आएगा। इस तरह हजरत साहब पहले आ गए। ये मिर्ज़े का जो उसने वो मनारा बनवाया था कादियान में, उसके बारे में कि मिर्ज़ा मर गया, मीनार बाद में कायम हुआ, यही था जो कुछ कहना था। टाइम गुजारी होगी आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया। साल जोड़ रहा हूँ, मेरा आ गया घोड़ा पेंट करने के लिए, मैं थोड़ा सा उसको जाब बताने लगा हूँ क्या क्या करना है। खान साहब जिंदाबाद है भाई, खान साहब। थैंक यू वेरी मच। वो जो गुजारिश की थी रात को, मैंने वो काम किया था ना, आपने को भेजना था अपने व्हाट्सएप या सो एंड सो मैसेज ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ना मैं पुराने सुनो, पुराने मैं जमाने सलाम भी साढ़े कीता है, वास्ते कोई कम अज कम बंदा सलाम का जवाब तो दे देता है। मैं फिर गुजारिश कर रहा अल्लाह गवाह, मैं बीमार हाँ, मैंने चीज़ों को हथ लाना ना लाना, ये सब जो कुछ है मैंने उन्हें कहना मशीना पुराने जमाने दी नवे जमाने दी मशीना जो कुछ भी है, वो मेरा बेटा आया घर एक, उसको मैं कहना सर्च करे तो आपसे रब्ता करता हूँ। लो मैं दोबारा अस्सलाम वालेकुम कीता जे हजे हुन। ओ वालेकुम सलाम जनाब, बिस्मिल्लाह। व्हाट्सएप ते बाबा जी, व्हाट्सएप ओके व्हाट्सएप। अगर मैं उधर देखने लग पिया तो मेरा बातचीत वाला सिस्टम बंद हो जाएगा टेम्परेरी, अगर मैं उस पास गया था। इस वास्ते मैं और देखांगा जरा इधर में राब्ता कोई बात नहीं। अच्छा नीडो जी आए ने, नीडो जी कौन ने? नीडो अपना तो नहीं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम बाबा, की हाल है? मैं ठीक उस्ताद जी, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮੀ ਸੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ शेयर करता हूँ ना। बल्ले अच्छा, वैसे वो सीरियल कैसी है दसो जरा, ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਤਬਸਰਾ ਕਰੋ। बहुत ज़बरदस्त, बहुत कमाल ਦੀ सीरीज़ है, और मैं ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਯਾਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦस्त ਬਾਹਵਾਲਾ ਹੈ। और मतलब रैफरेंस तो हट के कोई गल नहीं, जिवें कादियानी रैफरेंस तो बगैर मंगो तो कहते हैं कल देंगा परसों देंगा, तो वह हाज़र नहीं होंगे, फिर रैफरेंस आने तो ना कादियानी आउंदा। तो ये मुफ्ती साहब ने बड़ी ज़बरदस्त सीरियल और दिल बर्दाश्त हो के जी मिर्ज़ाई करते हैं, शतमियत करते हैं, तो उसकी वजह तो जोड़ा है तो मिर्ज़े नूं जोड़ा है तो अपनी किताबां जोड़ा ऑलरेडी वो साबित है, ऐ नहीं कि कोई इल्ज़ाम लग रहा। ये मुफ्ती साहब की बहुत ज़बरदस्त रिसर्च है, और 100 वीडियोज़ 100 होने तो जो वो जोड़ा है तो चीखा मारते हैं मिर्ज़ाई, तो जिसले 100 हुई तो उसलिए की हाल होना इन्हों का। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है मुफ्ती साहब, और सारे 99 जाके गिनती भुल जानी है बाबा जी। हाँ तू दोबारा तो खबीस दियां बच्चियां नूं क्या सी शातमियत ना करो, इन्हों बड़ा रोकिया, नहीं रुके ते मैं फिर मजबूर होके ए डिसीजन लिया। मैं कहा फिर चलो फिर इंज ते इंज ही सही। नहीं बहुत ज़बरदस्त है मुफ्ती साहब, और मुफ्ती साहब तुसी दोनों आइडिया ते शेयर कर दिया करो। नहीं वो स्ट्राइक नहीं आ जाती? नहीं कुछ नहीं होंदा, दोए तो तुहाडियां ही आने ना। नहीं है ते मेरियां ने, और मैं तो डरदा ही बड़ा, मैनू अजे ना कोई टिक टाक दे सही कोई ना समझ नहीं जी आई है। हुण भी उस मेरी आईडी ते ना ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਆਨਾ ਵਾ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਰਾਮੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜੁੜਿਆ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਨਵੀਦ ਭਾਈ ਤੇ ਮਲਕ ਭਾਈ ਤੇ ਦੋਸਤ रुकिया जे यार, मैनू भी थोड़ा जा काम है, मैं भी जान लगा वहाँ। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख्यालात उनके अपने ज़ाती हैं, और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख्यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।